Yeah. Hi, good morning. Hi. Hi. Good morning, Sonam. How are you? I'm good. I'm good. Good morning, everyone who has already joined us. I can see Shriya. I can see Charu. Thank you for joining us this morning. Very, very happy. Good Purab to everyone. And I'm very glad that you could, get some time to listen to this very, very important topic that is of brain decoding. And we have with us Priyanka ji, who is founder of Mama Bear Priyanka and Surprise Me, very interesting ventures. She is a certified pre-career specialist and a certified parenting coach. So Priyanka does parenting coaching and she also does pre-career coaching for kids and even for parents. She is a former banker and she left her banking job to take care of her child and then ventured into coaching parents, new parents. She's a BTech MBA. I'm so glad that Priyanka could come here and educate all the audience about brain decoding, which is a very interesting name in itself. So, Priyanka, without wasting any more time, I would like to jump to questions that we Sure. have for you. Should I start? Sure. Great, great. So, exactly what does brain decoding mean in the context of career and parenting? These are two different things, right? Right. So, first of all, viewers, happy Guru Purab to all of you and a very good morning. So, first of all, let me tell you that brain decoding is also known as DMIT, जिसका full form होता है Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test. Okay. So, the name itself says that it is the test to analyze your child's multiple intelligence. सो एक बार जब आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस का हमें पता चल जाता है या आपके बच्चे के मल्टीपल इंटेलिजेंस का हमें पता चल जाता है, वी विल टेल यू कि क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इम्प्रूवमेंट एरिया है, सो दैट पेरेंट्स विल गाइड द चाइल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली. मतलब अगर मैं 2 साल के या 3 साल के बच्चे को बता दूं कि इसका स्ट्रेंथ ये है, इसका इम्प्रूवमेंट एरिया ये है, तो पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को आगे तक फ्यूचर के लिए गाइड कर सकते हैं. ऑल्सो इसके थ्रू हम चाइल्ड की यूनिक पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर के बारे में भी बताते हैं, सो दैट एक हैप्पी बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में. सो पेरेंट्स विल ऑल्सो नो कि जिस तरह से बच्चा बिहेव कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पेरेंट्स फिर पेरेंटिंग करते हैं. Okay, I think that is the most important thing Right. because new parents usually struggle with this thing, Right. that why is my child behaving in a certain manner. So this Right. can help them figure that out and change their approach to parenting, which is interesting. So Priyanka, tell us that what are the key areas or components that are involved in decoding the brain functioning that you are talking about. Okay, so the key components are like child's personality and behavior. सबसे पहले तो वो ही आता है. हम पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, वो जो बिहेव कर रहा है वो क्यों कर रहा है. उसके अलावा उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस, हिज स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट एरियाज, उसके क्वेश्चंस लाइक IQ, AQ, EQ एंड CQ, बच्चे के सेंसेस कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके थॉट. CQ इज क्रिएटिव क्वेश्चन, which is very important now. And AQ is adversity को, जो situations होती हैं, अगर बच्चे को फीवर आ रहा है, जैसे मेरा बच्चा है, उसको फीवर आता है वो तो भी खेलता रहता है, वो तो भी खाना खाता है. कुछ बच्चे होते हैं जो फीवर आने में थोड़ा मुरझा जाते हैं, खेलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं. तो एवरीवन इज डिफरेंट. तो वो चीज एक होती है. और बच्चे के सेंसेस, मतलब आई कैन टेल यू कि आपका बच्चा पहले सूंघता है या सुनता है या देखता है, उसके सेंसेस में सबसे पहले क्या रिएक्ट कर रहा है, दैट आई कैन. ऑल्सो बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है, बच्चे के पास क्या राइट करियर स्ट्रीम के ऑप्शंस हैं, क्या सब्जेक्ट वो उसको लेना चाहिए, आगे उसका करियर किस तरफ जा सकता है, कुछ काफी ऑप्शंस हम देते हैं. That is all based on IQ, EQ, AQ and CQ, right? That is all based on your brain's lobe, not only your quotients. Okay. हमारे ब्रेन में एक्चुअली 8 लोब्स होते हैं, सबका अपना डिफरेंट वर्क होता है. बट बच्चे की पर्सनैलिटी और उसके जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग, प्लस IQ एंड EQ एंड CQ, AQ ये भी रोल प्ले करते हैं. इसके अकॉर्डिंग वी विल टेल कि बच्चे का करियर किस डायरेक्शन में जाए. बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर ऑल्सो वी विल टेल
कि वो किस करिकुलर एक्टिविटी में जा सकता है, एंड उसका पैशन के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं। Okay. मतलब ऐसा नहीं कि वी आर फोर्सिंग हिम टू डू समथिंग, इट विल बी अ पैशन ऑफ हिम। एंड अर्ली एज में आपको पता नहीं चलता है, बिलीव मी। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं Yes. जो 25 की एज में आने के बाद दे विल टेल कि अरे मेरा तो ये पैशन था, मैं गलत थी। Yes, So, that happens. हाँ, I think most of the college students also admission ले right, लेते हैं B.Tech में या right, B.Com में, and then they're still figuring out that what I actually want to. right, So right. brain decoding and a session with you can actually help them, and I think more to the parents, because parents को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है इस चीज़ की कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा. I think that's the most complex questions that parents struggle with. Hi Mayank, I can see. Thank you everyone. Thank you for joining in. So Priyanka, tell me that what are the different methods or maybe tools that are used to understand that how the brain influences these decisions, as in. Right. So I have a scientific tool जिसका नाम मैंने पहले भी बताया, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑल्सो नोन एज अ DMIT। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा, डर्मा मीन्स स्किन एंड ग्लिफिक मीन्स जो यहाँ पे हमारी कार्विंग बनी होती है। तो वी टेक द फिंगरप्रिंट ऑफ, और उसके फिंगरप्रिंट लेने के बाद हम उसके ब्रेन का एनालिसिस करते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस एरिया इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अवर ब्रेन। ये वाला हमारा हाथ यहाँ से कनेक्टेड होता है, ये वाला यहाँ से, ऐसे। तो ऐसे करके हम पहले फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, एंड देन वी टेल कि बच्चे के ब्रेन में जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें, उसका आगे करियर क्या होने वाला है, ये टूल है। इट इज अ टूल, ब्रेन डिकोडिंग प्लस एक और हमारे पास टूल है जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो वो भी वी यूज इट फॉर elder children like 15 years, 8 years to 15 years also। psychometric test उनके लिए भी यूज होता है who are employers, who are working। Psychometric test is very common in universities and colleges, right, before they take up the admission of students. Right, I have also given it. Yeah, that is also very common with a lot of employers, a lot of companies make their employees go through psychometric test. That is very popular one. Right. But the other one that we are talking about, I think that is specific to children, right? Yes, that is specific to children also, but it can be used for others also। आपके भी मैं फिंगरप्रिंट लेके आपकी पर्सनैलिटी आई कैन। Next time when we meet, we are going to do that. So what role does the brain decoding play in helping individuals, maybe let's say make better parenting decision, or maybe make a better career decision? Dono. Okay, so first of all, once you get to know your child's personality, like if you are talking about you, or if you are talking about other parents, अगर बच्चे की पर्सनैलिटी पता चल जाती है, सबसे पहले पेज वही आता है रिपोर्ट में। सो यू विल गेट टू नो कि योर चाइल्ड इज बॉर्न इन्फ्लुएंसर, और बॉर्न लीडर, और बॉर्न टीम प्ले। एम्प्लॉयर्स में मतलब if we are working or if we are doing a business also, so people are distributed in these criteria। तो like हमारी एक viewers हैं डॉक्टर मंजरी, she is born influencer, but her daughter is born leader। so ये एक डिफरेंस सबसे पहले हमें पता चल जाता है। उसके अलावा यू विल गेट टू नो द मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ योर चाइल्ड। यू विल गेट टू नो कि इसका राइट करियर ऑप्शंस क्या है, व्हाट इज द राइट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू शुड चूज फॉर योर चाइल्ड। सो उसके अकॉर्डिंग यू विल गाइड द चाइल्ड फ्रॉम स्टार्टिंग। इनहैंस हो जाएगा बेसिकली, ऑब्वियसली। जो स्ट्रेंथ है इट विल गेट एनहेंस, जो इम्प्रूवमेंट एरिया है वो और इम्प्रूव होगा ना। मतलब वो वीक हम नहीं रहने देंगे उसको। लाइक माई चाइल्ड वॉज, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, माई चाइल्ड वॉज एवरेज इन फाइन मोटर स्किल्स, बट ही इज 4 years old, और अब वो इतना लिखता है, इतना लिखता है, और इतनी सुंदर राइटिंग लिखता है। he knows 1 to 100 counting in Hindi, and he can write it also in a very beautiful writing। 4 years old। मतलब हमारी जनरेशन के लोगों को भी हिंदी में गिनती नहीं आती है, बहुत सारे लोग। so this is the power of brain decoding। जब आपको पता चल जाएगा राइट एज में क्या
इम्प्रूवमेंट करना है, क्या स्ट्रेंथ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, आपको अगर मैं 3 इयर्स की एज में बता दूं, तो आप उसको स्पोर्ट्स एकेडमी में बचपन से ही डाल सकते। So what are the common misconceptions or common myths about brain decoding? You know, because we don't have knowledge about it, we are not very aware. तो हमें बहुत सारे जो भी हम सुनते हैं या गूगल पे देखते हैं वो मान कॉमन मिसकंसेप्शंस और राइट। तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है या हम कहें मिथ है, वो ये है कि दिस इज प्रिडिक्शन, दिस इज सिमिलर एज प्रिडिक्शन, विच इज नॉट। इट इज नॉट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन इज एनालिसिस ऑफ योर स्टार्स, ग्रह नक्षत्रों का एनालिसिस होता है ना वो। दिस इज द एनालिसिस ऑफ योर ब्रेन एंड इट इज कंप्लीटली 100% साइंटिफिक बेस्ड मेथड, जिसमें हम आपके फिंगरप्रिंट के थ्रू आपके ब्रेन का एनालिसिस करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी कहें या पामिस्ट्री कहें, उसका एरिया ये वाला होता है, एंड ब्रेन डिकोडिंग का एरिया ये होता है, बस यहाँ तक ही रहता है। एंड दूसरा जो हम मिसकंसेप्शन की बात करें, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट आई विल सिलेक्ट सम इम्पोर्टेंट। हाँ, जो दूसरा है वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि आपके बच्चे के बारे में हम ये बता सकते हैं, तो दे विल से, पेरेंट्स से कि आई नो माई चाइल्ड, बट आई डोंट थिंक दैट यू नो। मतलब ठीक है, आपको पता तो रहता है कि बच्चा कैसा है, कैसा बिहेव करता है, बट द रीजन वाई ही इज बिहेविंग दैट यू डोंट। एंड यू डोंट नो कि किसी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसका मतलब बॉर्ड स्किल्स है या फिर उसने इम्प्रूव कर लिया है खुद को। क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हो, आजकल सभी बच्चों के सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी। प्रियंका, आप जो ये बात करो ना, मुझे एक क्वेश्चन आ गया बीच में ही। श्योर। जैसे पहले मुझे लगता था कि मेरी बेटी का हिंदी बहुत वीक है ना, तो मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती थी हिंदी पे कि हिंदी रीड करो, हिंदी लिख कर देखो, लिखने से आती है एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं और उसकी दादी, हम दोनों ना हिंदी के ऊपर बहुत फोकस। हम पीटीएम में गए तो हमें पता चला सारे बच्चे हिंदी में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्लास टीचर ने बोला शी इज नॉट द वन स्ट्रगलिंग इन हिंदी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे आर इन हर क्लास आर स्ट्रगलिंग विद हिंदी। तो मतलब व्हाई इज दैट सो? मतलब बच्चे इंग्लिश कर रहे हैं, बच्चे मैथ्स कर रहे हैं, environmental sciences अच्छे से कर रहे हैं, but why are they struggling with this one subject? Any common reason that it is not because of child's multiple intelligence। मतलब ये तो फैक्टर है ही, लेकिन जब सबकी हम बात कर रहे हैं, हर बच्चा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा इंग्लिश में अच्छा है तो वो हिंदी में भी अच्छा होगा, क्योंकि उसके ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज वी कॉल एज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लैंग्वेज को कवर करता है। तो वो हर लैंग्वेज को करेगा कवर। अगर बच्चा उसमें स्ट्रांग है तो वो आप उसको 10 लैंग्वेज सिखा दो, ही विल लर्न 10 लैंग्वेजेस इन वेरी अर्ली एज। हाँ, तो ये जो रीजन है ना, ये हमारी सराउंडिंग का रीजन है। हाँ, सोशल रीजन है। जैसे कि मैं बताऊं कि इफ अ पर्सन हु इज अ बॉर्न लीडर, लेकिन अगर मुझे टीम प्लेयर वाले एनवायरनमेंट में रख दिया जाए ना, तो मैं वैसी हो जाऊंगी, आई विल बिकम डीमोटिवेटेड। सराउंडिंग का इफेक्ट आता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा बना दिया गया है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पेरेंट्स भी वैसा ही बिहेव करते हैं और बच्चे भी देखकर वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि हिंदी इम्पोर्टेंट नहीं है। So this is not related mind में बैठ जाता है। So this is not related to the scientific reasons that we are talking about of brain decoding. It is something that is happening because of the social environment children are. Yes. So Priyanka, tell us that why should parents and let's say young professionals invest time in understanding these concepts? Give me a very solid reason. यंग प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स को ये इस चीज में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए टाइम, बिकॉज आपने बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स को देखा होगा, जो मैं एक एग्जांपल दूंगी कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन दे विल डू इंजीनियरिंग एंड दे आफ्टर कंप्लीटिंग द इंजीनियरिंग दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और जैसे कि आपने देखा होगा एमबीए चाय वाला, या फिर आपने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स के बिजनेस स्टार्ट करते हुए इंजीनियर्स को देखा हो। आई माई सेल्फ इज अ बीटेक हु हैज एंटर्ड, हु हैज परस्यूड मैनेजमेंट। तो ये क्यों होता है? बिकॉज आपको पहले पता नहीं होता है कि आपका है ना एग्जैक्ट पैशन क्या है। ठीक है, लेटर ऑन जब आपकी एज निकल जाती है, देन यू रियलाइज दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। एंड व्हाई इट
हैपेंस बिकॉज हम बच्चे को एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं, एजुकेशन अच्छा देते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी, मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। आई थॉट आई विल बी एन इंजीनियर, बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज आई रियलाइज दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई लोग आर्ट्स ले लेते हैं बट देन दे रियलाइज कि मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, उनके दिल से वो निकलता ही नहीं है ना। उनको तब रियलाइज होता है यार ये तो निकल ही नहीं रहा है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो एंड पेरेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड वॉट इज योर चाइल्ड्स राइट पैशन, और उसके लिए ब्रेन डिकोडिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट। Very interesting. I think more so for parents, it is very important because lot of time, हम पुश करते हैं बच्चों को कि आप ये कर 10 एक्टिविटीज में डाल दिया, तुम डांस भी कर लो, तुम स्विमिंग भी कर लो, तुम जिम्नास्टिक्स भी कर लो, एंड बच्चा इज जस्ट गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर. Sometimes we forget to ask the child also कि उसको क्या चाहिए. Right? So I think for parents it is extremely important कि हम we go through a session of brain decoding for children and work on only those areas which are their passions and they are manufactured in that manner के जो भी reasons हैं और उसी enhance करें. जैसे आप कह रहे हो ना maths वाली बात, my husband is an engineer and he is very good at maths. And my daughter also, she's very good at maths and she likes doing maths. अब मुझे नहीं पता कि वो इसलिए कर रही है because घर में माहौल ऐसा है कि maths आना चाहिए और maths जरूरी होता है and all of that, या फिर वो actual में इंटरेस्टेड है या उसका पैशन है मैथ्स. तो वो अब मुझे कंफ्यूजन हो गया जब आपने अच्छा, अभी मैं एक मिनट सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी और इससे थोड़ा हटके अब बात मैं बताऊंगी आपको. अभी आपने जो कहा ना कि मैथ्स इंपॉर्टेंट, यस मैथ्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. पेरेंट्स इफ यू आर लिसनिंग एंड ऑल्सो इफ चिल्ड्रंस यू आर लिसनिंग, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर योर करियर बट फॉर योर ब्रेन. क्योंकि जब हम मैथ्स करते हैं ना तो हमारे ब्रेन में एक स्पेशल वायरिंग क्रिएट होती है. आप मेरे अगर पुराने रील्स में या क्रिएटिव्स में देखेंगे जाके तो इसको आपको एक पोस्ट मिलेगा. एक स्पेशल वायरिंग क्रिएट होती है जिसके थ्रू हम एक स्किल्स डेवलप करते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम कहते हैं. राइट. अगर आप टेलर को भी देखेंगे ना, उसको भी मैथ्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन एक सब्जी वाले को भी मैथ्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बट आई विल नॉट से दैट इट विल बी योर करियर. Yes. I think we have also been wired like that because maybe अपनी फैमिली में my mother is a BSc in maths, तो उनका हमारे घर में भी माहौल ऐसा था कि मैथ्स बहुत जरूरी है, मैथ्स बहुत. So I wasn't very good at maths. Right, so everybody used to tell me तेरा logical reasoning अच्छा नहीं होगा, but I was good at logical reasoning. So somehow this has been wired into us कि maths is important. So now you have cleared it for me as well कि problem solving के लिए it is good. हाँ, I am very bad at that. मैं बहुत देर तक सोच. Okay, so this is something that I think every parent should invest in and understand that what their child is more into scientifically और उसका brain क्या actual में is made for. So can brain decoding technique used universally सबके साथ uniform ही होता है या फिर customize करना पड़ता है? No, it is used uniformly, universally. Okay. It just has a minimum age. You can start from 2 years or 3 years because ये हमारे फिंगरप्रिंट्स आ तो जाते हैं बट इसको एक ना डीपर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. मतलब अगर मैं 2 years से छोटे बच्चे का अगर फिंगरप्रिंट लूं तो वो स्कैनर कैच नहीं करेगा और फिर ऐसे बेयर आई से तो वो दिखेंगे. देयर इज अ मिनिमम एज ऑफ 2 years और मे बी 3 years से भी कई बार होता है, बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, तो 3 years वी कैन से. बट इट इज यूज्ड यूनिवर्सली and uniformly for everyone. I have done brain decoding for elders also, for marriage counseling also, and for choosing right partner for your business also. Oh, so very interesting. I think this is the power. Every young professional or somebody who is an entrepreneur is looking for a partner should also go through this, so it will be easy for them to figure out. Okay, very. So final question, Priyanka. This is like my final question. Too many questions I've asked. How can this approach empower individuals to lead a better life or a more fulfilling? Okay, so of course this will empower an individual to lead a better or fulfilling life because if I'll tell you, Sonam, you are a born leader. तो वही
है ना, your body language will change. Change. If I tell you that Sonam, you are born influencer, you will think about what reels you have created and you will feel, proud of them. If I will tell you, Sonam, you are a born team player, then you will think about what role you have played as a team, in a team. In a team. कैसे आपने, हाँ, अगर आपने टीम में कोई वर्क किया है तो वो कैसे किया है, उसमें आपके क्या अप्रोच थे, एंड यू विल फील प्राउड ऑफ दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो होता है. उसके अलावा जो बैलेंस लाइफ है, जब आपको पता चल जाता है ना कि मेरा ब्रेन की वायरिंग जो है और डिजाइन वो इस तरह से है कि हाँ, मेरे लोग में फॉर से इंट्रापर्सनल स्किल्स, यानी कि एक टीम में काम करने की स्किल्स बहुत अच्छी है. इंट्रापर्सनल स्किल्स फॉर योर गोल सेटिंग, तो मैं बहुत अच्छी गोल सेटिंग करती हूँ. एंड आई विल से कि है ना, बहुत अच्छी मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स है, मैं टीम में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हूँ. आई विल से कि आपकी लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छी है. तो यू विल फील, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सबसे पहली तो वही चीज होती है. इफ आई विल टेल यू कि योर चाइल्ड इज वेरी गुड, है ना, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, बट आप उसको बाहर नहीं ले जा रहे हो घुमाने, आप वो सिर्फ बुकिश बना रहे हो. इट्स गुड, बुक रीडिंग इज गुड. मैं भी अपने बच्चे को बुक रीडिंग की हैबिट डालती हूँ, बट बाहर घूमना भी बहुत जरूरी है. अगर आप बाहर उसको प्लांट्स के पास नहीं ले जाओगे, आप खुद ही प्लांट्स के पास नहीं जा रहे हो पेरेंट्स, तो बच्चा क्यों जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी चीजें आपसे स्टार्ट होनी है ना. आई वॉज वेरी मच इनटू, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग, बट अब मैं हिंदी क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू लर्न हिंदी ऑल्सो. मैं क्यों थोड़ा बहुत प्लांट्स में पानी डालती हूँ, एनिमल्स के पास जाती हूँ, सो दैट माई चाइल्ड विल ऑल्सो लर्न कि हाँ, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट, दिस इज इम्पोर्टेंट. सो जैसे आप सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करते हो, तो आपको देख के ये और मतलब आपके बच्चे भी वही कर रहे हैं. तो दिस इज द थिंग कि एक बैलेंस लाइफ के लिए और फुलफिलिंग लाइफ के लिए ब्रेन डिकोडिंग, आपके ब्रेन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस पर्पस को लेकर आए हो ना लाइफ में. टू अंडरस्टैंड this complex concept of brain is very important, so that parents also have a right and appropriate approach towards the child. And child को भी I think, जैसे आप कह रहे हो ना कि confidence आएगा जैसे उसे पता चलेगा अच्छा I'm a born leader, through that कि उनकी body language would definitely change that how I'm supposed to be. So otherwise तो we don't get to know this, because बच्चे को हम हर चीज करवाने लगते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स. मैं छोटी सी चीज और बताऊंगी, सॉरी व्यूअर्स थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो हम बात कर रहे हैं ना कि बच्चे के ब्रेन की डिजाइन, एक्चुअली हम सब, मतलब मैं थोड़ा माइथोलॉजिकल वे में भी आपको बताऊंगी, हम सब एक पर्पस लेकर आए हुए हैं लाइफ में. आप सबने ये चीज सुना हुआ होगा, गीता में भी ये चीज कहा गया है. क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह से डिजाइन किया हुआ है. भगवान ने सबके ब्रेन ही वैसे बनाए हुए. ह्यूमन ही क्यों कहा जाता है कि वी आर द मोस्ट वी हैव द मोस्ट पावरफुल ब्रेन, बिकॉज हमारे अंदर ही कैपेबिलिटी होती है कि हम अपने न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर सकते हैं. जो ये ब्रेन डेवलपमेंट हम लोग बोलते हैं ना, वो ये एज होती है जब न्यूरॉन्स कनेक्ट. दिस पावर एनिमल डोंट, उनके पास नहीं होता है. सो ये जो पर्पस है, ये जानना कि आपके बच्चे का राइट पर्पस क्या है, वही एक्चुअली पैशन होता है. राइट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली. वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शंस दैट यू हैव मेड प्रियंका. मेरे को लगता है कि हमें एक और सेशन करना पड़ेगा टू आंसर. इट्स अ वास्ट टॉपिक. या इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. और आज मेरे को खुद बहुत सारी अवेयरनेस हुई है about so many things about brain coding, and I think I'm bringing my child to you for a session to understand her better and maybe change my own parenting approach towards her. Very insightful. I'm full of gratitude towards you that you could find time and bring this amazing topic right here. People who are watching us and people maybe who will watch this video later on Instagram, I would request that you please read more about brain coding and maybe contact Mama Bear Priyanka to understand what brain coding is and to understand your child better. That's the crux of the thing, right. That to understand your child and have the right parenting approach is the most important. Right. Thank you everyone for joining us. Thank you Priyanka for coming here and educating all of us, even me. I'm so aware today. I'm thinking about CQ, I'm thinking about AQ. So many new concepts I've learned today. Thank you so much.
Thank you, Sonam. Thank you so much for having me, and thank you, viewers, for joining us